respect of our guests. I request everyone to please settle down. Good morning, everyone. I am Gurleen Kaur. And I, Dakshita Singh, welcome you all on the occasion of convocation ceremony. A gracious welcome to our dignitaries, Honorable Jitendra Vatsayan, Director General Medical SRPF, Dr. V. Kishore Gopal, Deputy Director Medical SRPF, Dr. Anita Mukherjee, Principal IPH&H, Dr. Mohit Sharma, Senior Consultant Pathology IPH&H, Ms. Asha Nadan, Principal IPH&H School of Nursing, Dr. Bhavna Agrawal, Senior Faculty Department of Philosophy, Dr. Indu Sharma, Senior Faculty Department of Philosophy, Honorable Shri Vijay Nandia Sir, Chairman IPH&H and FIP Group of Institutions, Honorable Dr. Nalini Ma'am, Director Admin IPH&H. Welcome you all. Light. Light is a symbol of brightness and prosperity, as sunlight expels the darkness and brings in our life prosperity and happiness. Today, we witness the beginning of a chapter that holds promises of growth, harmony, and boundless potential. I would request the dignitaries to light the lamp to make this event a blessed by God's. I cordially invite the dignitaries to occupy the honorable chair on the podium. I will request Shri V.K. Bhagwat Sir to felicitate Dr. Jitendra Vatsayan, Director Medical, CRPF, with a token of gratitude and appreciation.
will request again Shri V.K. Bhagavat sir to felicitate Dr. V. Kishore Gopal, Deputy Director, Medical CRPF. Respected faculty members, dignitary and dear CRPF delegates, a very good morning and a warm welcome to all of you at this momentous occasion of convocation ceremony of in-service CRPF delegates. Institute of Public Health and Hygiene is a charitable government-recognized institute providing the trained elite health professions for the healthcare industry worldwide since 1976. The institute founder, late Dr. Shri Shyam Sundar Joshi ji, were ahead of his time in engaging the institute in direct service to the community with community healthcare services, free rural mobile health services, free rural community public schools like primary education, immunization of program, service and rehabilitation to disabled, HIV and AIDS awareness, all of programs, and through the PPP funding model, we have already established 25 institutes all over India, which provides education at the doorsteps of the students in the regional language and has already implemented measures in furtherance of NEP 2020. Furthering the vision of its founder and present management, IPHNH has committed itself to serving the people of Jammu and Kashmir by establishing IPHNH College of Nursing in the region. The institute offers various under and post-grad diploma and degree courses. The institute is a pre-release training center for the Government of India Ministry of Defence, DGR, New Delhi, and is training in-service nominated candidates from Army, Navy and Air Force, also from the various state government and other organizations of national and international level. On that note, I would like to convey my hearty congratulations to all the delegates on the successful completion of their specialized training. A beautiful journey with you which started in 2022 has come to an end, and a new era of your career begins from here. We believe that this training must have groomed your learning skills and will enable you to learn a separate position among the society and your colleagues. Now, I would like to request Honorable Shri V.K. Bharadwaj, Chairman, IPHNH and FIMT Group of Institutions, to warmly welcome the gathering and set the tone for the convocation ceremony. हेलो, गुड आफ्टरनून। देश की सबसे पुरानी एकमात्र पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ साइंसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1984 से इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन फोर्सेस की ट्रेनिंग कराता है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, लद्दाख स्काउट्स और एसपीजी इनकी ट्रेनिंग 84 से इंस्टीट्यूशन कराता आ रहा है, जिसमें सीआरपीएफ भी है। मैं डॉक्टर जितेंद्र नाथ सियार, डायरेक्टर मेडिकल सीआरपीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका हार्दिक स्वागत है और आपने इतना कीमती समय दिया, जवानों के बीच आप आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर वी किशोर गोपाल, डिप्टी डायरेक्टर सीआरपीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि इतने बिजी हैं आजकल, आपको पता होगा G20 के प्रोग्राम्स कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं और जिसकी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ही सीआरपीएफ की है। मिस्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर अनिता मुखर्जी प्रिंसिपल, डॉक्टर मोहित शर्मा एचओडी ट्रेनिंग, डॉक्टर आस्था नादर नर्सिंग प्रिंसिपल, और आप सभी जानते हैं डॉक्टर भावना अग्रवाल और इंदु, जो आपके मास्टर ट्रेनर और मेंटर का काम किया और अच्छी तरह आपको ट्रेनिंग दी होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सीआरपीएफ
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेवा और निष्ठा। और हमें बहुत गर्व होता है, हम भारत देश के वासी हैं और हमारे देश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है सीआरपीएफ विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ की होती है। इतना ही नहीं, देश में विश्व के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र है, भारत का इलेक्शन भी सीआरपीएफ की जिम्मेदारी से होता है। नक्सलवाद, आतंकवाद और जम्मू कश्मीर की सारी सुरक्षा और कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ पूरी निभाती है। कोरोना काल में पूरे देश में हम सब घर के अंदर रहे, लेकिन हमारी पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस, डिफेंस सड़कों पे रही हमारी सुरक्षा के लिए। हमें इसके लिए गौरव होना चाहिए, हम बहुत गौरवशाली। विश्व में जितने भी कार्य आपने देखा होगा, डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर कहीं भी किसी भी कंट्री में होती है, आरएएफ की टुकड़ी सीआरपीएफ के अंडर की है, वो भी बाहर जाते हैं। इस संस्था को IPHNH को केंद्रीय सुरक्षा बल से जुड़ने का एक मौका मिला। हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इतने बड़े फोर्स के साथ हम जुड़े। इस बैच फिजियोथेरेपी का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, इसके लिए बड़ी तालियां हो जाए सबके तरफ। और एग्जामिनेशन भी सभी के 90+ रहे, कोई भी ग्रेड ऐसा नहीं था जो A+ ना हो। और आज तक जितनी ट्रेनिंग सीआरपीएफ की हुई है, सबसे अच्छा बैच ये रहा डिसिप्लिन के मामले में। और मुझे ये उम्मीद है और हम सब विश्वास करते हैं कि जहाँ कोई भी थेरेपी नहीं हो, वहाँ आपके पास ज्ञान का भंडार फिजियोथेरेपी है। आप किसी भी फील्ड में कहीं भी आप किसी की जान बचा सकते हैं, अपने साथी की, अपनी और भारत के किसी भी नागरिक की। इसमें आप सक्षम हैं। आप बताइए, आप तैयार हैं बिल्कुल यूनिट में जाने के लिए? हाँ जी। और इसको आप अपडेट करते रहना, नॉलेज को लेके बस्ते में नहीं डालना है। फिजियोथेरेपी हमेशा आपको फील्ड में या ड्यूटी में या घर में या रिटायरमेंट के बाद भी आपको काम आएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। IG साहब बैठे हैं, डिप्टी डायरेक्टर जी बैठे हैं, DG साहब हैं, CRPF के MH हैं, उनके मेहरबानी से, उनकी मेहनत से आपकी ट्रेनिंग हुई और ये आपकी ज़िंदगी भर आपके लिए खजाना है ज्ञान का। और मैं इतना ही कहूँगा, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन की तरफ से IG, CRPF, डिप्टी डायरेक्टर CRPF सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आप जवानों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आप बड़े डिसिप्लिन के साथ रहे, क्योंकि गन और पेन साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। आपने ये कर दिखाया। और आपने देखा होगा CPR की ट्रेनिंग भी आपको अच्छी लगी होगी। CPR की ट्रेनिंग आज की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि एकदम से हार्ट अटैक होना, ये होना आपके यूनिट में भी, पूरी इंडिया में भी, हमारे यूथ में भी। तो इसके लिए आपको अच्छा लगा होगा, एक तालियों के साथ गड़गड़ाहट करिए। और हम भी उम्मीद करते हैं, कभी भी कोई नॉलेज या किसी चीज़ की ज़रूरत हो आपको, डॉक्टर भावना अग्रवाल, डॉक्टर इंदू, डॉक्टर अनीता मुखर्जी, आप ग्रुप में हैं, कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े आप कभी भी मेल कर सकते हैं, इससे कोई भी एडवाइस पूछ सकते हैं कभी भी। और दिल्ली आए तो जरूर इंस्टीट्यूशन को याद करिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Now, I would like to request our eminent guest of honor, Dr. Jitendra Vatsyan, Director, Medical, CRPF, to share a few words with the service of CRPF delegates. नमस्कार। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र वात्स्यायन है और मैं डायरेक्टर मेडिकल CRPF का हूँ। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज मैं पहली बार इस इंस्टीट्यूट में आया हूँ। नाम बहुत दिनों से सुनता था कि यहाँ ट्रेनिंग होती है, आज देखने को मिला और यहाँ आके हमें बड़ा अच्छा लगा, हम बड़े प्रभावित हुए। अब
मैं यहाँ उपस्थित इंस्टीट्यूट के इस संस्थान के डायरेक्टर श्री भारद्वाज साहब का, यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी, सम्मानीय फैकल्टी मेंबर, कर्मचारी, स्टाफ सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी कोर्स यहाँ हुए वो किसी अंतवाद कुछ नहीं हुआ, बड़े शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। रही बात जब हम अपने बच्चों को बताएं कि जिंदगी में कोई भी प्रशिक्षण, कोई भी ज्ञान यूँ ही नहीं होता है, सबका कहीं ना कहीं यूज है। सपोज आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग किए हुए हैं, आप मन से उसको सीखा है, तो इसकी ज़रूरत आपको राह चलते मिल जाएगी। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, अगर आपको थोड़ा सा भी अनुभव और उसका नॉलेज है तो उस आदमी को आप उसकी प्राण की रक्षा कर सकते हैं। कहते हैं कि कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, गोल्डन पीरियड होता है, तो बहुत लिमिटेड समय के लिए होता है। उस समय में अगर आप सहायता प्रदान किसी को कर दिए तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है, उसका परिवार भी बच जाता है। रही बात आप फिजियोथेरेपी पे आते हैं, हमारे जो अभी वर्तमान में डीजी हैं वो फिजियोथेरेपी के प्रति बड़ा मतलब उनका रुझान है, और उनका ये कहना है कि भाई हर चीज़, हर बीमारी की दवा सिर्फ मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, कुछ बीमारियाँ फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम से भी ठीक होती हैं। और उनका कहना भी सही है, उनका कहना है कि अभी फिजियोथेरेपिस्ट की हमारे यहाँ बहुत कमी है, और जितने भी CTC, RTC, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट होना बड़ा अनिवार्य है। और फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास, हमारे पास इस बार में उनकी संख्या बहुत कम है, तो एक विचार हुआ कि हम अपने लोगों को ही इसमें ट्रेन कराएं ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी सेवा प्रदान कर सके और लोगों को इससे लाभ हो। इन सब बातों को ध्यान में रख के फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग शुरू की गई, और जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे अच्छा बैच और सबसे जो किसी नॉलेजेबल बैच जो अपना नॉलेज यहाँ से ग्रहण किया, किसी को कोई सेकेंड नहीं है, सारे के सारे फर्स्ट ही है ना, 90+ में है, ये मार्क्स हैं। तो बड़ा सुखद विषय है हमारे लिए, और आशा करते हैं यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके आप जाएं, आपकी फिर हो सकता है पोस्टिंग हो, ऐसी जगह पे पोस्टिंग हो जहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ आपकी सेवा आप भी दे सकें और लोग ले सकें। तो प्रोसेस से चलेगा। आप लोगों ने शांतिपूर्वक, बड़े धैर्य के साथ, अच्छे ढंग से यहाँ फिजियोथेरेपी कोर्स किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Now, I would like to invite on podium our distinguished guest, Dr. V. Kishore Gopal, Director Medical, CRPF, to address the gathering. मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय, पूजनीय हमारे डायरेक्टर मेडिकल सर श्री वात्स्यायन सर, इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री भारद्वाज सर, डॉक्टर अनिता मैम, उनका पूरा स्टाफ, यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और सभी मेरे साथियों, जैसे कि अभी आईजी सर ने आपको जो संबोधित किया, उसके बाद मेरा बोलना कुछ बचता ही नहीं। सर ने आप लोगों को मोटिवेट किया, और जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को फिजियोथेरेपी का ये जो 6 महीने का जो कोर्स था वो सही ढंग से चलाया, और उतनी ही उत्साह से, उमंग से आप लोगों ने भी उनका साथ दिया। इस 6 महीने में एक भी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आई। ये बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए भी था। जैसे कि सर ने बताया कि आजकल ज्ञान जो भी प्राप्त होता है उसका कहीं ना कहीं हमें उपयोग होता है, यूज होता है। इसलिए आप लोग ये जो कोर्स हमने चलाया, ये नर्सिंग असिस्टेंट के लिए था,
नर्सिंग असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे फोर्सेस में हैं उनकी कमियां हैं, और जहां भी फिजियोथेरेपी के हमारे लैब्स इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं तो वहाँ इन्हीं को प्रशिक्षित करके फौज के साथियों को उपयोग में लाने के लिए ये कोर्स चलाया गया था। इसलिए आप नर्सिंग असिस्टेंट का काम करते करते ही आप फिजियोथेरेपी में भी अभी एक्सपर्ट हो गए, और जब तक आप फील्ड में जाके खुद काम नहीं करेंगे, जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब आपका ये जो ज्ञान है इसका फिर उचित उपयोग नहीं माना जाएगा। इसलिए जैसे सर ने आपको इंडिकेट किया ही है, इसके बाद आपका हो सकता है पोस्टिंग हो जहाँ पर फिजियोथेरेपी हमारे जो लैब्स हैं उस जगह पे आपको तैनात किया जा सकता है, ताकि आपका ये जो ज्ञान है, आपका जो ये डिपार्टमेंट जो सोच के आप लोगों को डिप्लॉय किया है उसका उचित उपयोग हो। साथ ही मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सर ने वैसे ही सब आप लोगों को शुभकामनाएं भी दी है, इस इंस्टीट्यूट को भी धन्यवाद दिया है, लेकिन मेरा भी कर्तव्य बनता है कि सर को मैं भी धन्यवाद दूंगा, अपना समय निकाल के सर यहाँ पे आपके बीच में आ गए। साथ ही साथ इस इंस्टीट्यूट के सभी चेयरमैन से लेके आपका एंटायर स्टाफ जो है, टीचिंग स्टाफ है, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं वो लोग हैं, जिन एनसीसी कैडेट्स ने हमें बाहर जो रिसीव किया, आदर सम्मान दिया, उसके लिए पूरे इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि ऐसे कोर्सेस और भी आगे महोदय के विचार विमर्श के साथ हम भविष्य में चलाएंगे। उसके लिए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट करता हूं, और मुझे इतनी इज्जत देने के लिए आप सभी का पुनः एक बार आभार और धन्यवाद। थैंक यू। Now, I would like to request Dr. Anita Mukherjee, Principal, IPHNH, New Delhi, to address the gathering. Good morning, all of you. First of all, I would like to say best wishes to all of you that you have successfully passed your course. And I asked Bhavna madam when she was checking papers that she was telling that you have done very good. I asked her to go to your practicals and ask Viva also. Then she confirmed, and Indu madam also told me that नहीं सबका बहुत अच्छा है, Viva भी बहुत अच्छे से किए, practical भी बहुत अच्छे से सब लोगों ने किया है। तो जो हमारे जैसे डायरेक्टर सर ने बोला पहले कि हमारे जितने भी बैचेस आए हैं आप लोग सबसे अच्छा उसमें से परफॉर्म किए, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। और हम थोड़े शांति प्रिय हैं, तो हमें लगता है कि ये जो आप लोग, जो हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं उनको उनकी थोड़ी सेवा करने का हम लोग को मौका मिलता है। क्या आप लोग जिस फील्ड में है कि आप लोग सैनिकों के चिकित्सा में मदद करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि ऐसे कोई भी सैनिक कभी भी घायल ना हो, बल्कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हो भी कभी सरहद पे कभी युद्ध हो भी, पहली बात तो युद्ध हो ही ना, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। वो जिम्मेदारी हम लोगों के शिक्षाविदों की है कि हम ऐसा आप लोगों को समाज नहीं दे पाए कि आज भी सैनिक घायल हो रहे हैं, तो वो समाज हो सकता है हम लोग आगे देने की कोशिश करेंगे। और अगर युद्ध हो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट से हो। हमारे यहाँ अभी पाठ्यक्रम में हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नलिनी मैडम ने शुरू किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड किया है हमारे पाठ्यक्रम में भी, जिसके की बहुत दूरगामी परिणाम है चिकित्सा के क्षेत्र में भी, और ये दूसरे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसी के साथ फिर से दोबारा हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि जो कुछ यहाँ पे आप शिक्षार्थ आए थे, अब सेवार्थ चाहिए, और जितनी सेवा हो सके करिए। और कोई भी आगे आपको कोई दिक्कत आए, कोई फिजियोथेरेपी में भी चीजें बदलती रहती है, नई नई चीजें होती हैं, उसके बारे में आप हम लोग कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Today we are gathered here to recognize and honor exceptional delegates who have exemplified outstanding achievements
dedication and excellence in their respective fields. It is with a great pleasure and pride that we come together to celebrate the momentous occasion of medal and certificate distribution. धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव। धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव। दिनकर प्रसाद विश्वकर्मा। खादर अली सैयद। मोहम्मद असलम। विकी शॉ। संजीत कुमार। कैलाश। रामाजी यादव। Samar
Pal. Krishna Kumar Singh. Dharmendra Yadav. Yogendra Singh. Deli Ram. Shiv Raj. Dalip Kumar. Surendra Bhalu. Subhash Singh. Shivji Saha. Mukesh Kumar. Anil Kumar. Amit Kumar.
Desai. प्रशांत कुमार झा. राजा एम. मेघ राम. की ग्रुप फोटो ये सब सारे आ जाओ।
a lot of activities under G20 like food fest, IT hackathon, case study challenges, flower show, essay writing, panel discussion and plantation drive. Now, starting with the results of IT hackathon, the winner of the events are Deepak Kumar Chaudhary, Sanyam Kumar, Srishti Chaudhary, Abhishek Keshav, second position is backed by Sarthak Singh, Abhishek, Suraj Malik, Anubhav Rawat. Third position goes to Nihal Alam Karan Bharat Kasa. Next event is non-fire food making competition and the winners are Ashu Singhmar, Gayatri, Khushbu Saini, Nitika and Varsha 4th semester. तरीके से जाओ ठीक से जाओ
Shreya Mishra, Sonali. Second runner-up is Lakshita. Next event is case study challenge, and the winners are Anushka and Shamshi. Best of luck, congratulations. First runner-ups are Kamya Anand and Matt Malhotra. Second runner-ups are Suyan Sharma and Kavya Agri, Ayush Awasthi and Glory Singh. Next event is flower show competition in Rangoli category. The winners are Ashu Sarkar, Gayatri Rehan, Nitika, Varsha, Khushbu Saini. Sonali Sharma, Mansi Gupta, Niti Semen, Sakshi Jain, Lakshita. Second position goes to Mansi Kehlawat, Pandita Tripti Kapoor, Didi Mehra, Priyanka, Monica Prajapati, Aarti Jain, Himanshi Kathuria,
Prachi Gautam. All the in-service CRPF delegates are requested to please be present on the podium for a group photograph.